Hello and welcome back. I am Vandana and we are learning EVS of class 5. This is EduRise series by Amit Publishing House and here is a book, Eco World, a textbook of environmental studies. So let's start with unit 8, which is travel, and in this unit we are going to start with chapter number 17, which is different fuels. So the key topics that we are going to cover here are renewable energy, fossil fuel, non-renewable energy, coal, petroleum, fuels are limited, conservation of fuel. A substance which is burned to produce heat and power or energy is known as a fuel. So fuel क्या है? ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे जो है जलाया जाता है हीट, पावर या फिर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए. There are many fuels available in nature. नेचर में बहुत सारे फ्यूल्स हैं जो कि अवेलेबल हैं. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये कुछ कॉमन फ्यूल्स हैं. Now let's move on to renewable energy. So the sources of energy which are available continuously or can be renewed in nature are known as renewable sources of energy. So वो source of energy जो कि available है continuously and इसे हम renew कर सकते हैं नेचर में, इसे हम renewable sources of energy कहते हैं. Sunlight, wind, water, animal waste and the wood from plants are all examples of renewable sources of energy. So ये जो sources यहाँ पे mention किए गए ये सारे renewable sources of energy हैं जो फिर से generate किए जा सकते हैं and यहाँ पे आप इनके examples देख सकते हैं. Next comes fossil fuel, non-renewable energy. So वो energy जिसे हम फिर से renew नहीं कर सकते. So the sources of energy which are not available continuously and cannot be renewed, वो source जो लगातार हमें available नहीं है और उसे हम renew नहीं कर सकते nature में, उसे हम non-renewable source of energy कहते हैं. And they are also called fossil fuels, इन्हें हम fossil fuels भी कहते हैं. They produce a large amount of energy on burning. जलने पे ये काफ़ी ज़्यादा amount में energy को produce करते हैं. Fossils are remains of plants that got buried millions of years ago. Fossil क्या है? ये dead remains है plants की जो कि millions of years जो है पहले जो है बरी हो गए थे और फिर decompose हो गए थे. The fuels produced from the remains of plants buried under the earth millions of years ago are known as fossil fuels. और वो fuel जो कि dead remains जो थे plants के जो कि earth के अंदर जो है बरी हो गए थे millions of years पहले, उन्हें हम fossil fuels कहते हैं. And is wood also fossil fuel? क्या wood भी एक fossil fuel है? Why or why not? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर बर्निंग कोल की. सो कोल, अगर हम कोल की बात करें, सो अ फ्यू इयर्स बैक कोल वॉज यूज्ड एज फ्यूल टू रन स्टीम इंजन्स एंड शिप्स. शिप्स चलाने के लिए, स्टीम इंजन्स चलाने के लिए पहले कई साल पहले कोल को यूज किया जाता था. एंड इन अ स्टीम इंजन कोल वॉज बर्न टू प्रोड्यूस हीट. सो कोल को जला के हीट को प्रोड्यूस किया जाता था. And this heat boiled the water in the boiler. और ये जो heat है वो क्या करता था? जो boiler था उसमें पानी को boil करता था और steam को produce करता था. Steam moved the piston. Steam की वजह से piston move करता था and which in turn turned the wheels of the engine. और जिसकी वजह से engine के wheel चलने लगते थे. This is how a train moves. ऐसे ही train move करता है. And here you can see the picture of steam engine. So coal wants to produce heat. कोल जलता है, हीट प्रोड्यूस करता है, हीट चेंज करता है वाटर को स्टीम में. स्टीम क्या करता है? मूव करता है पिस्टन को. पिस्टन जो है टर्न करता है व्हील को और ट्रेन मूव करती है. एंड विद द अराइवल ऑफ डीजल एंड इलेक्ट्रिक ट्रेन्स, डीजल और इलेक्ट्रिक ट्रेन्स के आने के बाद जो कोल था उसने अपना जो सिग्निफिकेंस था उसको खो दिया था. Now let's learn about the formation of coal. So coal is a valuable natural resource. ये काफ़ी ज़्यादा कीमती natural resource है and ये एक sedimentary rock है जो कि बनता है plant के remains से. So millions of years ago earth जो है ढका हुआ था बहुत ही घने forest से
एंड जो कि स्वैम्प में ग्रो कर रहे थे। एंड जब अर्थक्वेक आया या फिर वोल्केनिक एरप्शन हुआ तो बहुत सारे जो फॉरेस्ट थे वो इस सरफेस के नीचे दब गए, बरी हो गए। एंड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ, और क्योंकि अर्थ के अंदर काफ़ी हाई टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो उसकी वजह से जो रिमेन्स है प्लांट्स के ये कोल में कन्वर्ट हो गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू यूजेस ऑफ कोल। सो कोल इज वेरी कॉमन टाइप ऑफ फॉसिल फ्यूल। ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन तरीके का एक फॉसिल फ्यूल है जिसे यूज़ किया जाता है बहुत सारे पर्पजेस के लिए। द मोस्ट कॉमन पर्पज ऑफ कोल आर लिस्टेड बिलो। कुछ कॉमन पर्पसेस दिए हैं यहाँ पे कोल के, जो कि यहाँ दिए हैं। पहला है फॉर कुकिंग एंड हीटिंग, कोल इज यूज एज अ फ्यूल। सो कोल को हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं कुकिंग और हीटिंग पर्पज के लिए। फिर कोल इज यूज टू प्रोड्यूस कोक, कोल गैस एंड टार। कोल को जो हम यूज करते हैं कोक, कोल गैस और टार को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड कोक और कोल गैस है, इन्हें हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। नेक्स्ट, synthetic natural gas and synthetic petrol are made from coal. So synthetic natural gas और synthetic petrol ये कोल से ही बनते हैं। फिर coal is used in thermal power plants for the production of electricity. So thermal power plants में भी कोल को यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कोल इज यूज फॉर कुकिंग। Next comes petroleum. So today almost all forms of transport such as cars, buses, scooters, aeroplanes and ships depend on petroleum products. ये सारी चीज़ें जो है आज के टाइम में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जिसे हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हैं। All motor vehicles have an engine. जितने भी मोटर व्हीकल्स हैं उन सब में engines होते हैं। And this is how an engine runs. तो इसी तरीके से जो इंजन है वो काम करता है। Fuel is burned in the engine to produce energy. एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए फ्यूल को बर्न किया जाता है। Next, energy produced runs the engine. ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो इंजन को रन करता है। Next, the engine moves the vehicle. और फिर ये जो इंजन है व्हीकल को मूव करता है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड इट्स प्रोडक्ट्स। सो कैसे पेट्रोलियम बना और उसके प्रोडक्ट्स, उनके बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। सो पेट्रोलियम क्या है? ये एक डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल है, और अगर ग्रीक में कहा जाए तो इसे हम पेट्रा कहते हैं, विच मीन्स रॉक्स, एंड ओलियम विच मीन्स ऑयल। सो द वर्ड पेट्रोलियम मीन्स ऑयल फ्रॉम रॉक्स। पेट्रोलियम का मतलब है ऑयल जो रॉक से आता है। सो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट बरीड अंडर द सी मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। सो सी के अंदर बहुत सारे जो प्लांट्स और एनिमल्स थे वो सारे बरी हो गए थे मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले। एंड जब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर था, टेम्परेचर था, सो अर्थ के हाई प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से ये जो बॉडीज थे वो धीरे धीरे पेट्रोलियम में कन्वर्ट होने लगे। ना पेट्रोलियम इज ऑब्टेन्ड बाय ड्रिलिंग होल्स कॉल्ड ऑयल वेल्स इनटू द अर्थ्स क्रस्ट। सो अर्थ के क्रस्ट में जो है होल्स ड्रिल किए जाते हैं एंड वहाँ से ये पेट्रोलियम हमें ऑब्टेन होता है, एंड ये ऑयल वेल्स है वहाँ से मिलता है। नेक्स्ट, द पेट्रोलियम सो ऑब्टेन्ड इज टेकन टू एन ऑयल रिफाइनरी, और फिर ये जो पेट्रोलियम है जो कि यहाँ से मिलता है इसे ऑयल रिफाइनरी लेके जाया जाता है। Here from crude petroleum products such as petrol, kerosene, diesel, fuel oil and fuel gas are obtained. So यहाँ पे जो क्रूड पेट्रोलियम है वहाँ से पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, फ्यूल ऑयल, फ्यूल गैस, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आप देख सकते हो ये है प्रोसेस पेट्रोलियम के, एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम का। सो यहाँ पे फर्नेस में आप देख सकते हैं क्रूड ऑयल है, एंड फिर फ्यूल ऑयल, डीजल ऑयल, केरोसिन, गैसोलीन जिसे पेट्रोल कहते हैं, गैस, ये सारी चीज़ें रिलीज हो रही है इसमें से। नाउ हाउ डू वी गेट पेट्रोल एंड डीजल? अब हमें पेट्रोल और डीजल कैसे मिलता है? सो द पेट्रोल एंड डीजल ऑब्टेन एट द ऑयल रिफाइनरी सप्लाई टू द पेट्रोल डिपोट्स in different parts of the country by trains and trucks.
सो ये जो भी पेट्रोल और डीजल इस पूरे प्रोसेस से निकलता है उसे क्या करती हैं, ये जो ऑयल रिफाइनरीज हैं ये पेट्रोल डिपोट्स पे जो है सप्लाई कर देती हैं अलग अलग पार्ट्स में हमारी कंट्री के, ट्रेन्स और ट्रक्स के द्वारा। एंड इन डिपोट्स से जो पेट्रोल है वो सप्लाई किया जाता है पेट्रोल पंप्स पे। एंड कैसे सप्लाई किया जाता है, ट्रक्स के मीडियम से। वी गेट पेट्रोल एंड डीजल फ्रॉम दीज पेट्रोल पंप्स, और फिर हमें ये पेट्रोल जो है इन पेट्रोल पंप से मिलता है। नेक्स्ट, फ्यूल्स आर लिमिटेड। सो फ्यूल्स लाइक कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। इन्हें जो है बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, बट द रेट एट विच दे आर बीइंग यूज्ड इज मच फास्टर। लेकिन जिस रेट पे इन्हें यूज किया जा रहा है वो काफी तेज है देन द रेट एट विच दे आर बीइंग फॉर्म्ड। सो इनके जो बनने का जो प्रोसेस है वो काफी स्लो है और हम जो स्पीड से इसे कंज्यूम कर रहे हैं वो काफी फास्ट है। हेंस एग्जिस्टिंग सप्लाईज आर रनिंग आउट फास्टली। सो जो भी एग्जिस्टिंग सप्लाईज है वो बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं। अ चार्ट गिवन बिलो विल इंडिकेट क्लियरली where we stand today in terms of their availability to us in the years to come. So यहाँ पे चार्ट के थ्रू हम इसे ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। So fuel natural gas है and the known supply in years about 40 years तक सिर्फ ये चल सकता है। When likely to run out, ये जो है हो सकता है 2035 तक ख़त्म हो जाए। फिर आता है ऑयल। ऑयल जो है 60 ईयर्स तक चल सकता है और हो सकता है ये 2055 तक खत्म हो जाए। फिर आता है कोल, ये जो है 290 ईयर्स तक चल सकता है एंड मे बी ये 2285 तक खत्म हो जाए। सो इसके खत्म होने का प्रोसेस बहुत जल्दी है। नाउ लेट्स लर्न अबाउट कंजर्वेशन ऑफ फ्यूल। सो फ्यूल को कैसे हम बचा सकते हैं। सो वी कंजर्व कोल एंड पेट्रोलियम इन द फॉलोइंग वेज। ये कुछ तरीके दिए हैं जिससे हम इसे कंजर्व कर सकते हैं। तो पहला तरीका कहता है वी शुड कीप आवर व्हीकल्स इन गुड कंडीशन। हमें अपने व्हीकल को सही कंडीशन में रखना चाहिए। वी शुड कीप द इंजन्स ऑफ आवर व्हीकल प्रॉपरली टर्न। हमें अपने व्हीकल के इंजन को जो है ठीक से रखना चाहिए। फॉर दिस वी शुड सेंड आवर व्हीकल्स फॉर पीरियोडिक सर्विसेज एंड इसके लिए हमें अपने व्हीकल को पीरियोडिक सर्विस में भेजना चाहिए। सर्विसिंग क्या करता है, इम्प्रूव करता है एफिशिएंसी और रिड्यूस करता है फ्यूल कंजम्पशन को। नेक्स्ट वी शुड यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बसेज एंड मेट्रो ट्रेन्स। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए जैसे बसेज हो गए या फिर मेट्रो ट्रेन हो गए, टू रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड, ताकि हम व्हीकल्स के नंबर को कम कर सके रोड पे। इन दिस वे वी सेव अ लॉट ऑफ फ्यूल, और इस तरीके से हम काफी ज्यादा अमाउंट में फ्यूल को सेव कर सकते हैं। वी शुड अवॉइड ड्राइविंग वेरी शॉर्ट डिस्टेंसेज। थोड़ी दूरी के लिए हमें ड्राइव नहीं करना चाहिए। इंस्टेड वी शुड वॉक और यूज अ बाइसिकल। या तो हमें चलना चाहिए या फिर बाइसिकल यूज करना चाहिए। इससे क्या होगा, फ्यूल सेव होगा एंड वॉकिंग एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है और हमें फिट भी रखती है। Now do you know the level of pollution in Delhi has been brought down significantly after the introduction of compulsory CNG in vehicles like buses, taxis and auto rickshaws? क्या आपको पता है जो पोल्यूशन का लेवल दिल्ली में था वो कम हो चुका है जब से जो है CNG व्हीकल्स जैसे कि बसेस, टैक्सीज और ऑटो रिक्शाज मार्केट में आए हैं। Now let's move on to exercises. So A exercises, take the correct option. The first one is coal is a dash rock, metamorphic, sedimentary or igneous rock. So the correct answer is sedimentary rock. Next, second, we get petrol from a petrol pump, tube well or river. Correct answer is petrol pump. Third one, it is a renewable source of energy, petrol, coal, sun. Sun is the correct answer. Fourth one, the materials that are burned to produce energy are called fuels, food products. Correct answer is fuels. Now let's move on to B exercise, which is named the following. First one is fuel used mainly for cooking, producing electricity, etc. is called coal. Next, second, petroleum is obtained by drilling holes.
and it's oil wells. Next, third one, we get petrol and diesel from this place for our vehicles. It's petrol pumps. Next, fourth one alternative source of energy is solar energy. Now, C exercises, fill in the blanks. The first one is, fuel is a substance which is burned to produce heat and power. Second, the full form of CNG is compressed natural gas. Third one, coal was used as fuel to run steam engines and ships. Fourth one, coal and petroleum are non-renewable source of energy. And the fifth one is, petroleum is obtained by drilling holes called oil wells. Now, D exercise is write T for true and F for false statements. The first one is, there are oil wells under petrol pumps. This is false. Second, petroleum is a vegetable oil. False. Third one, we should prevent wastage of fuels. Yes, this is true. Next, fourth one, CNG stands for compressed nominal gas. This is false. And the fifth one is, we use only coal to drive vehicles. This is also false. So these are the answers. Now let's move on to the next exercise. E exercise, which is answer the following questions. So here the first question is, how can we conserve coal and petroleum? So we can conserve coal and petroleum by using it wisely. We should use public transport in place of private transport. We can also use carpool. Either we can walk for short distances. We should try to use renewable resources of energy, and we should maintain our vehicles so that these fuels can be used effectively. Question number 2, what are renewable sources of energy? Give 3 examples. So the renewable sources of energy are the energy that can be renewed, and the examples are sun, wind, water. Question number 3, how is coal produced in nature? So the dead remains of plants that are buried deep in the swampy areas. So it helps in production of coal. So millions of years ago this happened, and due to the pressure and heat of earth, this converted into coal. Next, question number 4, what are fuels? Name any 2 fuels. So fuel is a material that is, when burnt, it produces energy, and the 2 fuels are coal and petrol. Question number 5, how do we get coal and petroleum? So we get coal by mining, and we get petroleum by drilling oil wells in swampy areas or seabeds. So these are the answers that you have to write down, and you can add some of your points here. And with this we have completed the chapter. I hope you understood it. I'll be meeting you soon with a new video and a new chapter. Till then, stay tuned and thanks for watching.